Hello everyone. Hello. See how many people join us today. So everyone, today again we have one more team. Hello Harshit. Hi Harshit. Harshit is our guest today from Team Electron. Harshit, it would be better like if you can come with your Team Electron's Instagram handle. Hello Shruti. Hello Mr. Icon, Mr. Halona. One World Solutions. Hi. Okay, so we have got four other people with us. Hello Pavan. Hi Harshit. Hey Gershon Thomas. Hello Dark 66786. Hello everyone. Hello Dromel. Okay, so good evening to each one of you who is present in this video. Okay, in this live feed, sorry. Hello Brajesh. Yeah Harshit, I have got a request. I'm going to connect you just in a minute. Hi Pawan. So we are again up with one more episode in this live feed series where we bring one team member each day to discuss about the challenges that they have faced while forming a team. We are going to discuss today what it takes to form a team, what it takes to participate in an event, and why and how should one have to participate in any of the event while they are in their engineering campus. This entire series is dedicated to all the passionate engineering undergraduates who want to build the solutions for this world, who are not who do not believe in doing the engineering right in their classrooms, but have got the guts enough to step out and start participating in any of the event. We are not here just to promote ATVC, but to instill you with the feeling of what it takes to do the real engineering. And this is the real theme of this entire live feed series, breaking the barriers. Now I'm going to join today's guest from Team Electron Racing, Mr. Harshit Gurjar. I'm going to accept his request to going to be with us in a moment. Okay, Harshit, I can see that you have declined the request. Please send me the request again. Hello, Team Avatar Racing. Hello, Manikanta. Okay, so we have been joined by Harshit. Sir, am I audible? Yes, Harshit, you are very much audible. Hi, thank you for joining in, Harshit. Okay, sir, बिल्कुल, thank you. ठीक है. So Harshit, I believe you already know the gist of this entire series. ये series हम लोग क्यों कर रहे हैं आपको सब कुछ पता होगा, Yes, है sir. ना? Yes. इस series के जरिए like we want to inform all the students who ever want to participate in any kind of event या जिन्होंने आज तक participate नहीं किया है but they want to participate. So at least like if we are going to have people like you who are doing wonders while participating in events or while building their vehicle, I want you to share your story, your struggles, and what it really takes to build a vehicle. तो हर्षित एक बार शुरुआत करेंगे आपके इंट्रोडक्शन के साथ ताकि आप एक बार बताओ कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, ताकि लोग आपसे एक बार कनेक्ट करें. Okay. Firstly, thank you for giving me this opportunity. My name is Harshit Gurjar. I am born and brought up in Harda, Madhya Pradesh. Currently, I am pursuing my BTech degree from Oriental Institute of Science and Technology, Bhopal, and I am in my final year pursuing BTech degree from Automobile Engineering. I have participated in Baha SAE and ATVC program in 2020 and 2021. We have built an electric vehicle and we have got a cost prize in ATVC, runner up in ATVC as well as Bahar. Thank you. That's great. That's great. अच्छा,
तो एक बार हर्षित, like if you want to tell us कि what is the history of your team, what is the history of Team Electron, ये कैसे शुरू हुई, and when have you joined this team, and when you joined this team, what are the changes that you brought in the entire system of this team? सो फर्स्टली हमारे कॉलेज से कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनी, सो वी वेयर द फर्स्ट टू बिल्ड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। फिर उसके बाद जब ये सब टीम में चालू हुआ बनाने का, तो देन आई वाज इन माय सेकंड ईयर कॉलेज। फिर हमारे जो सीनियर्स थे, सुपर सीनियर्स थे, उनके लिए भी सब चीज़ें बिल्कुल नई थी, क्योंकि वी केम फ्रॉम दैट मैकेनिकल एंड प्रॉपर टेक्निकल ब्रांच। तो इलेक्ट्रिकल का हमें किसी को कोई भी नॉलेज नहीं था। अब हमारे सीनियर्स थे तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में हम आए, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा जो नेचर है वो थोड़ा फ्रैंक था, तो हम लोग सीनियर्स थे, आसानी से कनेक्ट हो पाए। उसके बाद कनेक्ट होने के बाद फिर हम लोगों ने धीरे धीरे टीम बिल्डअप किया। मैं और मेरे सीनियर्स हमारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाके करने लगे कि वी आर नाउ बिल्डिंग अ टीम, वी हैव टू बिल्ड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो वी वांट मेंबर्स हु आर रियली इंटरेस्टेड। फिर हमने थोड़ा बहुत कॉलेज में ही कैंपेन किया। फिर हमने धीरे से थोड़े बहुत स्टूडेंट्स, जूनियर्स, उनको इकट्ठा किया। चैलेंज हम लोगों के लिए सबसे बड़ा यही था कि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, व्हाट इज कंट्रोलर, ट्रांजिस्टर्स, ये सब कैसे वर्क करते हैं, बैटरी कैसे काम करेगी, बैटरी का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए। अब मैकेनिकल में क्या रहता है, आपको बहुत सिंपल गाइडलाइंस दी रहती है कि आपको प्रॉपर एक इंजन होता है कि आपको इस जगह से सोर्स करना रहता है, उसके इतना इतना डायमेंशन रहेगा, इतना सीसी का रहेगा, ये प्रॉपर फिट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमें मोटर, अब मोटर का भी हमें कितना चाहिए, कितना आरपीएम पे कितना होना चाहिए वो वर्क करे। फिर उसका कंट्रोलर हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, प्रॉपर चार्जिंग होनी चाहिए कि नहीं, ओवर हीट नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे बड़ा एक होता है कि बैटरी का, कि अगर उसका इंक्लिनेशन चेंज हो सकता है तो बहुत जल्दी वो बहुत हजार्डियस कंपाउंड बन सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। तो फिर उसके लिए फिर हम लोगों को सीनियर्स के से भी रिक्वेस्ट किया, जो लोग थोड़ा डिजाइनिंग में थे, जिनको प्रॉपर कैटिया ऑटोकैड चलाते आता है, उनसे डिजाइनिंग में भी करा। अब एज अ मैं गया था तो मेरे को ऑटोमोबाइल्स, मतलब फ्रॉम चाइल्डहुड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कार एंथुसियास्ट हूँ। मतलब अभी भी जस्ट मैंने अभी एक पोलो भी सेकंड हैंड परचेज की, और बिल्कुल अब मुझे इसका ट्यूनिंग का बहुत वो शौक है, तो कार को प्रॉपर ट्यून करना है। तो मैं फिर जब टीम में ज्वाइन हुआ तो वहाँ पे स्टेयरिंग रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, उन लोग का था कि कैसे करना है। तो फिर सीनियर्स लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करिए, उसके बाद आप, अगर आपके रिसर्च आप हमें सबमिट करके प्रॉपर हमें वो बिलीव कर दिला सकते हैं कि आप अच्छे से करेंगे, तो फिर हम आपको स्टीयरिंग का हेड बना देंगे। फिर मैं प्रॉपर स्टीयरिंग का हेड बना, फिर हम लोगों ने काम किया। बट सबसे बड़ा इशू, अगर आप मुझसे पूछे कि टीम में क्या होना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस, और सारे मेंबर्स में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। और अगर आप, मतलब आपको पता नहीं होगा, पर हम लोगों ने हमारी व्हीकल, तो आज रात के 12 बजे तक हम लोगों ने व्हीकल पे कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। उसके बाद भी हम लोग जाके वहाँ पे प्रॉपर रनर अप के गए हैं। प्रॉपर हमने इवेंट में, रेटीबीसी में तो प्रॉपर गाड़ी चलाई भी हमने, एंड्योरेंस रेस में भी गए, सारे रेस में भी किया हुआ है। बस इतना ही है। और इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन इतने से में आस्क। तुमने बहुत सारी बातें बता दी हर्षित। यस सर। हर्षित, मैं ये जानना चाहूंगा, तुमने बताया कि तुम स्टीयरिंग टीम के हेड हो अभी, ठीक है, जी तुमने सर। टीम को ज्वाइन किया, तो अभी आप फाइनल ईयर में हो। आपने जब टीम को ज्वाइन किया था तब आप किस ईयर में थे? मैं सेकेंड ईयर में था सर, जब डिपार्टमेंट में ओके, आया था तो बेसिक आपके पास कंप्यूटर। एक ओके, तो आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पूरी की पूरी टीम में काम करने का। जी सर। हर्षित, जैसे कि कई सारे कॉलेज होते हैं, आप भोपाल से हैं, आप भोपाल में बीटेक कर रहे हो, आपने देखा होगा बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, भोपाल तो भरा पड़ा है इंजीनियरिंग कॉलेज से। यस सर। फिर भी आप पाओगे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं इवेंट्स में। जी तो सर। एक सवाल मेरा जो पहला आपसे है वो ये कि हम्म, क्यों क्यों कोई पार्टिसिपेट करे, और हम्म। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है तो आपको लगता है कि क्या रीजन हो सकता है, और किस तरीके से हम लोग उनको भी इस फील्ड में लेकर आ सकते हैं। सर फर्स्ट चैलेंज तो एक रहता है कि अगर अपन कोई भी एटीवीसी या कोई भी व्हीकल बना रहे हैं, तो उसका एक कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है कि 5 to 6 लाख जो भी व्हीकल बना रहे हैं। इफ यू आर गोइंग इन गोकार्ट तो थोड़ा बजट कम रहता है, इफ यू आर गोइंग टू बिल्ड एन एटीवी तो बजट ज्यादा होता है। अब हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस से हैं, अब हम लोगों को बजट का थोड़ा इशू था। अब सब लोग इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर, 25 से 30 हज़ार रुपए पर पर्सन मिनिमम लगता है। तो इतना वर्थ होता है, आप एक व्हीकल बनाओ, 25 से 30 हज़ार रुपए खर्च करते हो, तो आपके व्हीकल मोर देन सफिशिएंट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अब हम लोगों में था कि मनी का हो गया, फिर थोड़े जूनियर्स को भी हम लोगों ने थोड़ा रिक्रूट किया। फिर सब लोगों के घर में था कि थोड़ा प्रॉब्लम पैसे का, तो फिर हम लोग गए, अपनी व्हीकल का पूरा एक फाइल बनाया,
हमने उसको सॉफ्टवेयर पे भी सब बताया, व्हीकल ऐसा रहेगा, इस हिसाब से परफॉर्म करेगा, वाई वी आर सुपीरियर फ्रॉम अदर व्हीकल, सब उनको दिया। उसके जाके फिर हमने स्पॉन्सरशिप ली। वो सारी स्पॉन्सरशिप लेने के बाद हम लोग को थोड़ा कॉस्ट में थोड़ा सा रिडक्शन महसूस हुआ। तो फिर हमारा जो 25,000 पर पर्सन जा रहा था वो 10 to 15,000 जा रहा था। अब प्राइवेट कॉलेज के अलावा हमारे मतलब भोपाल में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो कि अपने को जो भी बच्चे अगर कोई कंपटीशन में जाते हैं तो उनको प्रॉपर एक स्कॉलरशिप देती है, ट्रैवल का पूरा वो देती है, फी वेवर्स देती है। अब हम लोगों को उतना नहीं हो पाया क्योंकि वी आर द फर्स्ट, कॉलेज को भी हम लोग को फर्स्ट टाइम प्रूव करने को होना था। अगर एक व्हीकल बन जाती तो कॉलेज के पास थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि स्टूडेंट्स जा चुके हैं और ये अब इस फील्ड में एक्सेल करेंगे। बट हम लोगों का फर्स्ट टाइम था तो उन लोगों ने बोला कि आप एक बार ट्राई करो, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो वी विल हेल्प यू। अब ये सबसे बड़ा इशू ये कॉस्ट का रहता है। उसके बाद सबसे सेकंड जो रहता है वो है टीम बिल्डिंग का, क्योंकि टीम में आपको प्रॉपर ऐसे बंदे होने चाहिए कि अगर जैसे कार है, अगर कार में 4 व्हील है तो आप सोचो कि 3 व्हील पे गाड़ी चल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको प्रॉपर सारी टीम एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस और स्पिरिट के साथ काम करने का भी होना चाहिए। ऐसा भी है सर। और अगर अगर आपको प्रोग्राम में और बच्चे और टीम भी चाहिए तो अगर मैं एटीवीसी से अगर रिक्वेस्ट करूंगा तो आप जो कॉलेजेस जो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स आपके इवेंट में रहे हैं, आप जैसे आप ये इंस्टा लाइव कर रहे हैं, वैसे कोई ना कोई टीचर या जज पैनल से हो तो उनके कॉलेज में विजिट कराइए, बच्चों को थोड़ा गाइडेंस, क्योंकि हम लोग तो गाइड कर देते हैं बट आप लोग जो है वो थोड़ा ग्राउंड लेवल पे चीजें समझा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जो सेशन दिया है, मैं एटीवीसी की पूरी टीम को ये मैसेज पास ऑन करूँगा, ताकि जी वो लोग इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करें। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। अच्छा, जी सर। अभी ना इससे एक सवाल मेरा अधूरा रह गया और एक सवाल और नया आ गया है। जो सवाल अधूरा रह गया वो ये है कि क्यों कोई टीम पार्टिसिपेट करे? और दूसरा सवाल जो अभी-अभी नया-नया बना है आपकी बातें सुनकर, वो ये है जैसे आपने बताया कि आपने एक स्पॉन्सरशिप रेज़ करी, तो जो पहले पर हेड ₹25,000 आ रहा था, वो कुछ 10 से 15,000 हो गया। तो सबसे पहले तो चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस, खासकर जब बच्चे पहली बार गाड़ी बना रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है उनके स्पॉन्सरशिप लेकर आना। तो आप क्या सजेशन दोगे, किस तरीके से कोई स्पॉन्सरशिप को पिच करे? सर आपका ये स्पॉन्सरशिप का क्वेश्चन, तो हम लोग का कॉलेज अगर देखा जाए तो 1995 में एस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद से अभी तक जितने भी कॉलेज में टीम्स बनी है, हमने उन सारी टीम्स की फाइल, सबके रिपोर्ट, उनने कौन कौन से प्राइज अपने अब जितने भी इवेंट हुए उन सब में जीते हैं, उन सब का हमने प्रॉपर एक फाइल बनाई थी, एक सॉफ्ट कॉपी भी बनाई थी कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो आपको एज अ टीम नहीं देख रहे हैं, वो आपके कॉलेज देख रहे हैं कि हाँ ये कॉलेज के बच्चे हैं, इनके कॉलेज के बच्चे हमेशा जितने भी इवेंट आ रहे हैं इन सब में जीतते जा रहे हैं। तो हाँ, कॉलेज में प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर सब स्किल डेवलपमेंट सब हो रहा है। तो हमने हमारा जब भी कहीं भी गए हैं तो हमने टीम इलेक्ट्रॉन, फिर उसके आगे प्रॉपर कि हम वी आर फ्रॉम ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, ये हमारा प्रॉपर जितना भी अभी तक का हिस्ट्री है, हमारी टीम्स जितनी भी कॉलेज से परफॉर्म की है, और जितने भी गोकार्ट है, एसआरएम में तो गोकार्ट जाती है तो हमेशा फर्स्ट ही विनर आई है, जब से गई है, जब से आज भी, लास्ट ईयर भी गई थी कोरोना के जस्ट पहले, तब भी फर्स्ट टाइम ही आई थी। तो हमने उनको प्रॉपर एक हिस्ट्री से वो बताया कि हाँ हमारा कॉलेज जब भी गए फर्स्ट टाइम आया। अब उसके बाद अगर कोई नया कॉलेज है वो क्यों आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर अपना जो बीटेक का है कोई से भी कॉलेज से अगर आप करिकुलम देखें तो उसमें इतना डीप टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, और टेक्निकल नॉलेज हो भी तो आप अगर हैंड्स ऑन एक्टिविटी नहीं करेंगे जब तक आपको चीजें समझ नहीं आएगी। अगर आपने मुझे एक चीज बता दी कि सस्पेंशन ऐसा काम करता है पर मैंने उसे कभी रियल लाइफ में देखा ही नहीं वर्क करते, तो मैं कैसे समझूं, कैसे इमेजिन करूं। तो सबसे बड़ी बात यही होती है। और अगर ये कोई मेरे जूनियर्स भी देख रहे होंगे तो आप अगर सोचो कि आपको कोर फील्ड में जाना है, कहीं महिंद्रा में जाना है, कहीं टेक महिंद्रा, किसी में भी, टाटा में, किसी में भी जाना है, तो वो एज अ फ्रेशर इतनी जल्दी आपको रिक्रूट नहीं करती है। बट अगर आप उनके इवेंट्स में इतने पार्टिसिपेट करोगे कि तो उनको इतना मालूम रहेगा कि हाँ आपने एक व्हीकल बनाया तो मिनिमम टू मिनिमम 6 to 7 मंथ्स आपने इस व्हीकल पे पूरा काम किया है, आपने इस व्हीकल पे R&D करी होगी, इसके व्हीकल का ये कंपोनेंट क्यों लगा होगा, आपने इस पे R&D करी होगी। तो अब आपको प्रॉपर एक इंडस्ट्री का नॉलेज है। अब आप फ्रेशर्स नहीं कहलाएंगे, अब आप एक्सपीरियंस कहलाएंगे, जिनके पास 6 मंथ्स का तो मिनिमम एक्सपीरियंस रहेगा। और आपने इवेंट में जिस तरीके से परफॉर्म करेंगे उस तरीके से वो आपको एज ए रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ भैया आपने टीम गए थे, आप फर्स्ट प्राइज आए, मतलब आपने जो भी रिसर्च करी है प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट की है, आपका सेटअप जो भी है, व्हीकल का सस्पेंशन सेटअप प्रॉपर वर्क किया है, आपकी बैटरी ने प्रॉपर पावर डिलीवर करी है, आपने जो भी कैलकुलेशंस की है वो पॉइंट टू पॉइंट है।
तो मैं तो अपने सारे जूनियर्स को यही कहूंगा कि हमेशा कोई भी एक्टिविटी हो, अगर आप ऑटोमोबाइल ब्रांच से हो, मैकेनिकल ब्रांच से हो या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, अपने को हर चीज में ट्राई करने का रहता है। अब मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि यार 1-2 साल और मिल जाते तो जो अंदर की चुल है वो थोड़ी और। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू यहाँ पर आ रहा है हर्षित के साथ में। आई होप कि वो जल्दी से दोबारा रिकनेक्ट करके हमारे साथ ज्वाइन करेगा। हम्म। वैसे हर्षित ने ये बात बहुत सही बोली कि क्यों किसी को पार्टिसिपेट करने के जवाब में उसने बोला कि आपने जितनी भी चीजें क्लासरूम में पढ़ी हैं उसको प्रैक्टिकली अगर यूज कर पाओ, प्रैक्टिकली उसका यूज केस समझ पाओ, दिस इज व्हाट इंजीनियरिंग है। और ऐसे किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करना, जैसे कि एटीवीसी है, ऐसे किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करना आपको ये मौका देता है कि आप फिजिकली उन चीजों के ऊपर काम करें। इसलिए आपको एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे बिल्कुल क्लियर स्पष्ट आंसर यही है। इससे ज्यादा कुछ भी क्लियर आपको आंसर नहीं मिल सकता। क्यों पार्टिसिपेट करें? आप जो भी चीज क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उसको फिजिकली देखने का, उसके ऊपर काम करने का और अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने का मौका देती है आपको इस तरीके के इवेंट्स। तो जरूर ऐसे जो भी इवेंट्स आपको मिल रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उनमें पार्टिसिपेट करें। एटीवीसी ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर आ रही है 12 जून को। अगर आप लोग टीम बना रहे हैं, बनाने का सोच रहे हैं या बना चुके हैं, पर कोई इवेंट ढूंढ रहे हैं या मन नहीं है, डाउट में है, जो भी चीजें पार्टिसिपेट करो करो, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। जितने भी लोग तुमसे आप मिलेंगे वो लोग भी आपसे बोलेंगे कि जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। अभी तक हर्षित दोबारा रिज्वाइन नहीं कर पाया है। उसके साथ कुछ तो नेटवर्क का इशू रहा है, इसलिए शायद वो ज्वाइन नहीं कर पाया है। मैं एक बार फिर से चेक करूंगा, अगर हर्षित को हम लोग रिक्वेस्ट सेंड कर पाते हैं अपनी तरफ से तो। ठीक है, आई एम इनवाइटिंग हर्षित। अभी देखते हैं, अगर उसका कनेक्शन सही होगा तो साथ में आएगा। ओके जी हर्षित, सर, लगता यू है आर नेटवर्क बैक। प्रॉब्लम था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है हर्षित, अभी बिल्कुल सेट है। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हर्षित, मुझे आपका ये जवाब ना बिल्कुल सही लगा कि क्यों किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपने बोला कि ये इवेंट में पार्टिसिपेट करना या खुद से गाड़ी बनाना एक आपको प्रैक्टिकल मौका देता है कि आप प्रैक्टिकली चीजों को कर पाए। जो चीजें आपने पढ़ी हैं आप फिजिकली उसको देख पाए, उसके ऊपर काम कर पाए। इनफैक्ट आप उसमें कुछ और अपना भी पॉइंट एड ऑन कर पाए, कुछ बेहतर बना पाए उसमें। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रीजंस देने की हमें जरूरत नहीं है। समझने वाला इस एक पॉइंट को पकड़ के इस आधार पे सब कुछ कर सकता है अगर वो समझना चाहता है। आपने बिल्कुल। किया है, और भी लोग कर सकते हैं। अच्छा, हर्षित, तुम क्या कहना चाहोगे? जैसे भोपाल में इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतनी सारी टीम्स हम बना सकते हैं। जैसे तुमने बोला कि एटीवीसी के एक सजेशन दिया कि और ज्यादा कॉलेजेस में ये जाएं, जाके लोगों से मिले, उनको बात करें, क्योंकि जब तक हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, उनको रियल में बेनिफिट नहीं बताएंगे, वो लोग नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल सर। जब तक उन्हें खुद, और एक बार अगर वो आ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि शायद वो लोग कभी वापस नहीं जा पाएंगे। इस बिल्कुल। चीज के बाद तुम क्या कहना चाहोगे? लाइक तुम्हें अभी एक्सपीरियंस है, तुमने एक बार गाड़ी बनाई है, तुमने पार्टिसिपेट किया है। ये जर्नी जो होती है ना टीम बनाने की, ये कैसी होती है? सबसे पहले जर्नी को मैं तो कहूँ, मैं कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में आया था, तो आप अपने कॉलेज को ऐसे विजिट करते रहते हैं, आप देखते हैं कि आपको यार ये बेसिक पढ़ा रहे हैं, अब जस्ट 12 पास करके आए हैं, आपको कुछ मजा नहीं आ रहा है, घूमना फिरना है। तो जैसे आप अपने डिपार्टमेंट में आते हो, आप अपने सीनियर से जैसे इंटरेक्ट करते हो, तो आपको थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पता चलने लगती है। वो भी सीनियर जो रहते हैं वो भी सुपर सीनियर से कनेक्टेड रहते हैं, उन्हें भी पता रहता है कि अच्छा अब मेरे सीनियर हैं वो इस कंपनी में प्लेस्ड हो गए हैं, अब वो फॉरेन जाने की कर रहे हैं, उन्हें कहीं महिंद्रा से ऑफर आ गया है, कहीं कुछ हो गया है, तो अपने को लगता है कि हाँ यार ये कैसे हुआ। अब हम लोग भी गए थे, हमको भी सुनने में आया, फिर हमने भी उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसे प्रॉपर एक इवेंट्स होते हैं, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो। सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि हम लोग जब भी कहीं भी, जो सीनियर्स हैं कहीं भी जॉब प्रॉपर में करने जा रहे हैं कोर में, उन्होंने बोला कि आप एक्सपीरियंस हो नहीं हो वो ठीक है, बट कंपनी आपसे क्या रिक्वायरमेंट चाह रही है आप उसको फुलफिल करना आना चाहिए आपको।
अब जैसे कंपनी चाहती है कि भैया इसको ऑटोकैड चलाने आता है, अब जिसने टीम बनाई होगी, इसने कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया होगा, उसको कम से कम तो बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड, केटिया, स्टेट प्रो, इन चीज़ों का बेसिक्स तो नॉलेज होगा कि अच्छा व्हीकल इसमें बनती है, इसमें टेस्ट होती है, इससे रेंडर होती है, ये सब चीज़ें। अब अगर आप बोलो कि सर मेरे पास प्लेन बीटेक की डिग्री है इन मैकेनिकल ब्रांच से, ऑटोमोबाइल ब्रांच से, तो बोलेंगे बेटा ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं। अब वो पूछेंगे आपके पास डिफरेंस क्या है, तो मैं बोलूंगा कि सर मैंने ये बड़े बड़े इंडिया लेवल पे इवेंट्स होते हैं, इनमें पार्टिसिपेट किया है, हमारी टीम ने वहाँ पे एक्सेल किया है। अगर चांस मिलता, कोरोना ना होता, तो हो सकता हम लोग दोनों इवेंट में प्राइजेस जीत सकते, फर्स्ट प्राइज भी जीत सकते अगर इस साल और अच्छा होता। क्योंकि अब हम लोग एज अ फर्स्ट टाइम गए थे सब जगह, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगा कि अरे यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा सा कम हो गया। हमने कहीं कहीं थोड़े पैसे बचाने की भी कोशिश करी, क्योंकि अब सब लोग अपने पॉकेट से ही दे रहे थे। और एज अ हम लोग प्राइवेट कॉलेज से आते हैं, तो हम उतना पॉकेट फ्रेंडली नहीं होते कि कॉलेज से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा जितना हो सके उतना कहीं पे पैसे कॉस्ट कटिंग करी, कहीं पे करा। बट हम ये इतना चाहते थे कि हम जहाँ से कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं वो ऐसी जगह से ना हो जिससे गाड़ी का फेलियर हो जाए, जिससे कहीं भी कुछ भी हमारी व्हीकल में प्रॉब्लम आए। कॉस्ट कटिंग या अपन को वेट कट करना है तो मटेरियल थोड़ा सा कम एमएम का ले लो, ऐसा। बस सर ऐसा ही है। ओके हर्षित, ओके। ये सारी चीजें जो तुम बता रहे हो ना, इतनी स्पष्ट बता रहे हो, इतनी क्लियर बता रहे हो कि डायरेक्टली हिट करेंगे जो भी इसको सुनेगा और समझना चाहेगा। बिल्कुल। हर्षित, एक चीज मैं ये और पूछूंगा, जैसे कि तुमने बताया कि क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुमने ये भी बताया कि क्या क्या स्ट्रगल होते हैं। एक बार तुम ये स्टेप वाइज प्रोसेस बताओगे कि अगर, जैसे कि मान लो मैं किसी कॉलेज में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करूँ, तो मैं क्या करूँ इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए? मैं किस तरीके से अपने साथ वालों को कन्विंस करूँ कि हम टीम बना पाए? टीम बना लिए तो हम लोग कौन से इवेंट में कैसे कब रजिस्टर करें, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, या जो जो होते हैं ठीक है, कैसे रजिस्टर करना है? रजिस्टर करने के बाद जो टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब जो स्पॉन्सरशिप चाहिए या आपको अपनी जेब से लगाना है, कॉलेज से बात करनी है, वो जो पूरा प्रोसेस है, जब तक आप इवेंट पे अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हो वहां तक का जो पूरा प्रोसेस है, एक बार तुम सिंपल टर्म्स में अगर लोगों को एक्सप्लेन करना चाहो। बिल्कुल सर। अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो जैसे हम लोग गए थे, अब हमारे कॉलेज से टीम जा चुकी थी। अब जिनके कॉलेज से टीम नहीं गई, वो फर्स्ट टाइम वाले हैं, तो मैं उन लोग को यही करूंगा कि अपने जो फैकल्टीज हैं, जो भी अपने मेन हेड हैं, जो कभी किसी भी कोई भी स्टूडेंट्स ने कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया हो या रिसर्च में कहीं वो इन्वॉल्व रहे हैं, तो सबसे पहले उनको कांटेक्ट कीजिए। उनसे पूछिए कि सर हम लोगों ने दूसरे कॉलेजेस के बच्चे देखे हैं, वो इस इवेंट में जाते हैं, कुछ एटीवी चीज होती है, कुछ बनाते हैं, कुछ गोकार्ट होता है, ये बनाते हैं, तो हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करें। अब हर कॉलेज का अलग होता है। हमारे कॉलेज में हमारे फैकल्टी सीनियर्स लोगों ने थे, तो उनको पता था कैसे कैसे करना है। अब जिनके कॉलेज से नहीं है, उनके फैकल्टी मेंबर सबसे पहली चीज हो गई। फिर उनके हो गए सीनियर्स। अब सीनियर्स में भी ऐसे रहते हैं, सब बच्चों के हर कॉलेजेस में दोस्त लोग होते हैं, ये तो रहता है। अब कोई बोले कि मेरे तो कोई दोस्त नहीं है सर, हम तो बिल्कुल, हमें तो कुछ भी नहीं पता, तो ऐसा नहीं है। आपको हमेशा हर बंदे से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। अगर आपको अपनी फील्ड में एक्सेल करना है ना, तो कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप आईटी फील्ड में जाओ, कोर ब्रांच में जाओ, मैकेनिकल ब्रांच में जाओ, किसी में भी जाओ, आपको अपने हर कॉन्टेक्ट प्रॉपर सब जगह से मेंटेन करना आना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं पता, कौन से इवेंट नहीं पता, तो आप प्रॉपर गूगल पे सर्च करो कि ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए कौन से इवेंट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, इंटरनेशनल लेवल्स पे क्या क्या होते हैं। जो भी ब्रांच से हो आप उसके प्रॉपर सर्च करो कि इंडिया लेवल पे क्या होता है। आप इंडिया लेवल पे जाओगे, फिर आपको वहाँ जो भी इवेंट होंगे मिलेगा। फिर उसको वहाँ पे आप ब्रोशर्स पढ़िए कि भैया उन जो प्रॉपर इवेंट्स होते हैं उनकी क्या गाइडलाइंस होती हैं, व्हीकल बनाने का प्रोसीजर। बहुत जितने भी इवेंट होते हैं सबके मोस्टली जो ब्रोशर होते हैं उसमें प्रॉपर इवेंट्स की डेट डली होती है, कौन कौन से दिन क्या क्या टेस्ट होने वाले हैं, कब कब होने वाला है, आपकी रिपोर्ट कब सबमिट होगी, वर्चुअल राउंड कब होगा, फिर प्रॉपर स्क्रूटनी टेस्ट ये सब फील्ड पे कब होगा, क्या क्या फीस है, रजिस्ट्रेशन क्या क्या फीस है, ये सब चीजें दिखी रहती है। और मैं तो सारे जूनियर्स को, सब लोगों को देखने व्यूअर्स को ये बोलूंगा कि आप लोग हमेशा, अगर आप अपनी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप हमेशा जो 15-20 हज़ार रुपए का सब लोग फोन लेके घूमते हैं पॉकेट में, उसका प्रॉपर तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि मैं को फर्स्ट ईयर में गया था तो इतना नहीं पता था, क्योंकि मैं थोड़ा विलेज से आया था, तो मुझे नहीं पता था। पर मेरे सीनियर्स फोन आए, फोन से भी सर लोगों ने भी बताया कि ऐसे इवेंट्स होते हैं, प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियोस देखो। अब आपने प्रोसेस तो पढ़ लिया पर आपने इवेंट को नहीं देखा,
तो हो सके तो आप अगर जब फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो अपने सीनियर्स के साथ एक बार विजिट पे जाइए। ये जो प्रॉपर इवेंट होता है, जैसे अपने एटीवीसी का बड़ौदा हो गया, उधर चले गए, बाहा का इधर पीतमपुर साइड हो गया, यहाँ पे आके देखिए। क्योंकि इवेंट में आप एक बार आओगे तो आपको लगेगा नहीं यार, कंपटीशन लिटरली बहुत लेवल हाई है। अपने को किस तरीके से इंडस्ट्री में जाना है तो उस हिसाब से अपने को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और आप सोचो कि मैं एक प्रॉपर मैथ साइंस पढ़ के कॉपी बुक पेन पे कर लूँ, तो ये सब नहीं होगा। आपको प्रॉपर इवेंट में जाना चाहिए, जितने भी सब टीम से सबसे मिलके बात करना चाहिए कि सर आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, आपकी व्हीकल आपने इलेक्ट्रिक क्यों बनाई, मैकेनिकल वाली क्यों नहीं बनाई, इंजन वाली क्यों नहीं बनाई। सब लोगों से बात करके, आप इंटरेक्शन करके आपको कम से कम ये तो पता चलेगा, अच्छा ग्राउंड रियलिटी ये होती है, हमको ये कितना बजट लेके चलना पड़ेगा। ऐसे वहां से जाके ये भी पता कर सकते सर आपने कहाँ से बैटरी करवाई, आपने ये क्यों ली, इतने एम्पियर वॉट की क्यों बैटरी ली। सब जगह आपको सब लोगों से कांटेक्ट जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा और उतना ही अच्छा होगा आपके इवेंट के लिए। हम लोग एटीवीसी में आए थे, तो शायद वहाँ पे एक गुजरात का कोई सा कॉलेज था जो शायद 3-4 साल से प्रॉपर विनर ही आता है। अब हमारी व्हीकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि हमारे जो व्हील्स थे वो प्रॉपर ब्रेक में लॉक नहीं हो रहे थे। अब हम लोग सब व्हीकल के जितने भी पिट थे सब लोगों में वहाँ घूमते रहे, सब लोगों से उनसे पूछे कि सर ब्रेक्स का हमारा इश्यू आ रहा है, आपने उसके लिए आपकी व्हीकल में क्या किया। हमारी व्हीकल में जो ब्रेक थे वो थोड़े एबीएस टाइप के लग रहे थे, व्हील जो प्रॉपर लॉक नहीं, तो रुक रुक के लग रहे थे। उनसे सबसे बात करी, फिर वो वाले कॉलेज मतलब के जो जितने भी टीम मेंबर्स थे वो इतने अच्छे थे और हमारी भी उनसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो उनके टीम मेंबर्स के जितने भी हेड थे वो प्रॉपर अपनी टूल किट लेके आए, उन्हें प्रॉपर हम लोगों की मदद करी, हमारे ब्रेक में मदद करी, फिर हमने जो ब्रेक टेस्ट था वो भी क्लियर करा। ऐसे ही है कि आप अपने सब आसपास के लोगों से जितने अपनी ब्रांच के कांटेक्ट बना के रखोगे, आपको सब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मैं इसी एक सवाल के ऊपर आने वाला था, तुमने उसी का एक जवाब दे दिया कि बाकी की टीम्स भी साथ में काम करती हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अक्सर जब लोग इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो किसी दूसरी टीम से बात करने के लिए बहुत कुछ शाई होते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं इनसे कैसे बात करेंगे, ये लोग क्या करते होंगे क्या नहीं करते होंगे। तो इस चीज के बारे में तुम क्या बोलोगे? जैसे कोई भी पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, हर किसी को सीखना पड़ता है दूसरे से, तो कैसे, किस मीडियम के थ्रू वो बाकी की टीम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो गलतियां ना करें जो उन टीम्स ने करी हुई है? सर सबसे पहले बहुत सारे लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी बात करते हैं, जैसे आज अपन दोनों ही बात करें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। अब हम लोग भी वहाँ पे टीम गए थे, वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के बच्चे लोग आए थे, अलग अलग स्टेट्स की टीम आई थी। अब अपने को लगेगा कि यार हम लोग उनसे कैसे बात करें, वो तो आईआईटी से आए हैं, वो तो प्रॉपर मैनेज से आए हैं या बड़े कॉलेजेस से आए हैं, हम लोग उनसे कैसे इंटरेक्ट करें। वो भी वही ब्रांच से आए होंगे, उन लोगों के भी सेम आइडियल सेम गोल्स होंगे कि हमें भी इस टीम में जीतना है, सब लोग उसी के लिए काम कर रहे होंगे वहाँ पे। बट इतना है कि आप अगर उनके पास जाके पूछेगा तो अपनी जो जितने भी इवेंट्स होते हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच वाले कोर वाले, ये सभी लोग सभी बंदे इतने फ्रेंडली होते हैं कि आप आपके अगर वो कंपटीशन भी होगा ना तो भी वो आपकी मदद करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, अपने बाजू वाली पिट है वो मदद नहीं करे, उसके बाजू वाली पिट है नहीं मदद करे, और 150 टीम आती कोई ना कोई तो जरूर मदद करेगा। और अपन कंपटीशन में गए हैं तो ऐसे हार के तो वापस नहीं आना चाहिए। अपन ने 5-6 लाख रुपए ला के अपने व्हीकल बनाई है, तो इतनी सारी टीम से आप किसी से भी हेल्प लेंगे, हमेशा कोई ना कोई टीम होती है जो प्रॉपर मदद करती है, और आप किसी की मदद करोगे तो वो भी आपकी मदद करेगी। सेम ही है। ये बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, सही बात है। एक पिट नहीं दूसरे पिट पे जाओ, दूसरी नहीं तीसरे पे जाओ। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीच आउट करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको ये ना लगे कि मेरा गोल इसलिए अकम्प्लिश नहीं हुआ क्योंकि मैं रीच आउट करना मुझे नहीं आता था। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है आशित यहाँ पे, बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, बस एक आखिरी सवाल है। जैसे कि तुमने बताया कि जब तुम लोगों को टीम फॉर्म करनी थी, पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे थे, तुम लोग बहुत फ्रेंड थे, तुम लोगों ने सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन किया और मिलकर एक टीम फॉर्म करी। ये सीनियर जूनियर जो लीगेसी होती है बहुत ज्यादा जरूरी होती है पास ऑन करने के लिए। इनफैक्ट मैं जितनी भी बार लोगों से मिलता हूँ मैं हर बार इस चीज का जिक्र जरूर करता हूँ कि ये लीगेसी कैसे आगे पास ऑन करी जाए, कैसे तुमने अपने सीनियर से सीखा, कैसे आप अपने जूनियर्स को सिखा रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ मैं सीनियर जूनियर आपके कॉलेज के अंदर ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी एक हॉलिस्टिक, पूरी कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है पूरी कम्युनिटी के अंदर, कैसे आप लोग बाकी के जितने कॉलेज है भोपाल में या पूरे देश में उनको आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और करना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो ये सीनियर जूनियर्स का अगर देखा जाए, ये कॉलेजेस में नहीं, अपने आप कहीं पे काम करने जाते हैं वहां पे भी होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है,
अगर आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तो हम लोग गए थे कॉलेज में, तो हमारे सीनियर्स से, कहीं भी कॉलेज में जाते हो आप एज ए फ्रेशर जाते हो, तो आपका सीनियर्स के साथ एक प्रॉपर जनरल इंट्रोडक्शन होता है, तो वो पूरा दिन चलता है। उसमें वो आपसे पूछते हैं आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, व्हाट आर योर गोल्स, आप क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, आप यही ब्रांच क्यों चूज करी है आपने, आपको दूसरी ब्रांच क्यों नहीं जाना, आपको इस ब्रांच से क्या पॉजिटिविटी लगती है, आप इस ब्रांच में आना चाहते हैं। ऐसा हमारा प्रॉपर सीनियर्स का इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद थोड़े फन राउंड्स भी हुए। उसमें फिर हम लोग थोड़ा, जो हमारी सीनियर्स के साथ, आप अगर आप सेम ब्रांच के होते तो आप आपके सीनियर्स से थोड़ा मेंटल लेवल पे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। सेम ब्रांच के होने से ये रहता है कि हाँ, उनकी भी चॉइसेस वही हैं, आपकी भी चॉइसेस वही हैं। तो हम लोगों का सीनियर्स और हमारा ऐसा था कि बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाए थे, क्योंकि ऑटोमोबाइल ब्रांच बहुत ऐसा हर कोई नहीं लेता कि यार चलो मेरे को ऑटोमोबाइल ब्रांच लेनी है 12th के बाद। वो बिल्कुल जो बोलते हैं ना कार एंथुसियास्ट, वो होता है, वही बंदा ले सकता है कि बिल्कुल हाँ, जिसने 6th क्लास 5th क्लास से कार में जब भी बैठा है तो उसको कुछ ना कुछ चुन रही है कि नहीं यार मुझे कल को कार चलानी है, मुझे या तो रेसिंग में जाना है, प्रॉपर मॉड्स कराने हैं कार में। ऐसा ही बंदा जाता है। नहीं तो आजकल तो देखा जाए आईटी सेक्टर और सीएस ब्रांच का बूम है, बट उसके बाद भी हमारी ब्रांच में प्रॉपर एडमिशन हो रहे हैं। आपके इवेंट्स में ही प्रॉपर टीम्स आ रही हैं, ऐसा तो है नहीं टीम्स आना बंद हो गई हैं। ऐसा ही है। अब अगर आप सीनियर जूनियर की लेगेसी देखें तो अब हम लोग फाइनल ईयर में आ गए हैं, तो जब हम सेकंड ईयर में आए थे तो हमारे भी जूनियर्स आ गए थे उस टाइम पे। तो हमने भी सेम प्रोसीजर यही किया था। हम लोगों ने उनको यही बोला था कि हम लोग तुम्हारे सीनियर्स कॉलेज में हैं, बाहर हम तुम्हारे एज अ बड़े भाई हैं। तुमको लाइफ में कहीं भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, वर्क रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, लाइफ रिलेटेड हो, किसी भी प्रॉब्लम हो, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। तुम एज हमको बिग ब्रदर देखोगे तो हम आपको एज ए स्मॉल ब्रदर देखेंगे। आप हमसे इज्जत नहीं दोगे तो हम भी आपको इज्जत नहीं देंगे। इतना सिंपल सा फंडा था। हमारे सीनियर्स ने हमेशा हमको छोटे भाई की तरह बड़े प्यार से रखा था। हम लोग भी उनके साथ बड़े भैया के जैसे बिल्कुल हमेशा उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी, कहीं भी मिले प्रॉपर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करो। अब अपने को लगता है कि ये विश करने से 10 बार दिखते हैं, 10 बार क्यों विश करें, पर हो सकता है सामने वाला सीनियर प्रॉब्लम में अपने विश करने शायद उसका दिन अच्छा चला जाए। ऐसा भी रहता है। बिल्कुल, बहुत ही क्लियर कट तुमने ये सारी बातें बोली और मुझे ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हें इतनी क्लैरिटी है चीजों को लेके। मुझे बाकी लोगों का नहीं पता कि बाकी के टीम मेंबर्स भी बिल्कुल इस तरीके से सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, बट हाँ, जो भी इस टीम का मेंबर और अगर इस मीटिंग में हम लोग के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मैं ये जरूर बोलूंगा सभी लोगों को कि हर्षित से ये चीज जरूर सीखना है एक बार कि कितनी क्लैरिटी है उसको ऑब्जेक्टिव्स को लेकर कि हाँ भाई ये काम क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आई एम रियली वेरी हैप्पी हर्षित कि आपको इतनी क्लैरिटी अभी से है इन सारी चीजों को लेकर। थैंक यू हर्षित, सर। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम लोग रैप अप करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूँ कि एक बार अगर हर्षित गुर्जर को मैं बोलता हूँ कि इंडिया के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसके अंदर उसको कोई एक मैसेज पास ऑन करना है, तो वो क्या होगा? मैं एक ही चीज कहूंगा, जितना से जितनी एक्टिविटीज हो सके, जितने से जितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट होते मैंने, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, सब में पार्टिसिपेट करो, सब में पार्टिसिपेट करो। बैठे बैठे कॉपी पेन पे कुछ नहीं होगा। अब हमें सेकंड ईयर में ये जरूर लगता था कि अरे यार बीटेक डिग्री कर लेंगे, कोई भी फट से हमें नौकरी तो दे ही देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थाली में कुछ खाना लाके कोई नहीं देता। रोटी थोड़ी जली भी खानी पड़ती है, थोड़ी कच्ची भी खानी पड़ती है, उसके बाद पकाई रोटी मिलती है। बिल्कुल सही बात है। मैं ये जरूर बोलूंगा जितनी भी भोपाल की और एमपी की टीम्स हैं, अगर आप लोग भोपाल के आसपास कभी भी आ रहे हो तो एक बार आके हर्षित से जरूर मिलना ओरिएंटल कॉलेज में, ताकि एटलीस्ट आपको पता चल सके कि क्यों टीम बनानी चाहिए और क्या क्या लगता है टीम बनानी चाहिए। हर्षित, इट वॉज माई प्रिविलेज कंप्लीटली टू हैव यू हियर ऑन दिस लाइव फीड टुडे विद अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कीप इंस्पायरिंग पीपल विद योर स्माइल एंड विद योर वर्ड। थैंक यू सो मच हर्षित फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। Okay, everyone. So here again today we have got one more guest from Team Electron Racing. Team Electron Racing is the engineering team from Oriental College Bhopal. Mr. Harshit Gurjar is the team captain of Team Electron. Now, as what Mr. Harshit Gurjar has said, one should have to form a team to get to know about the practical aspect of engineering. Whatever you have learned in your classroom, you get the opportunity to work on those fundamentals practically if you're participating in any such kind of event. We wish to see you all participating in the upcoming season of ATVC season 5 to be held
on 12th of June. The registrations are open. You can visit our website atvcofficial.in. You can also DM your inquiries associated with the event on this Instagram handle. This is Abhishank Jain from Achilles Racing Club signing off. Thank you so much, everyone.